Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में हम सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi asks people to make the local global and enhance demand of Indian products. Takes pride in country achieving $400 billion export target. And FPI outflows jump past 1 lakh crore rupees in just 3 months of this calendar year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें, ताकि विदेश में भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और मांग बढ़े। $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर भी उन्होंने गर्व व्यक्त किया। और वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली। Prime Minister Narendra Modi today exuded pride that India achieved the export target of $400 billion. Addressing the people through his Mann Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi said, "Made in India products are now reaching new markets in every corner of the world." He pointed out that when Indians become vocal for local, the local becomes global. He asked people to make the local global and augment the prestige of Indian products further. The Prime Minister said the demand for items made in India is increasing all over the world. He said it also signifies that the supply chain of India is getting stronger. He highlighted that the exports of leather products from Hailakandi in Assam, handloom products from Usmanabad, fruits and vegetables from Bijapur, and black rice from Chandoli are increasing. The world-famous apricot of Ladakh has reached the markets of Dubai, and bananas are being shipped from Tamil Nadu to Saudi Arabia. The first consignment of millets grown in Himachal Pradesh and Uttarakhand was exported to Denmark. Banganapalli and Subarnarekha mangoes from Krishna and Chittoor districts of Andhra Pradesh are being exported to South Korea. Fresh jackfruits from Tripura were exported to London by air, and for the first time, king chili from Nagaland was dispatched to London. Similarly, the first consignment of Bhalia wheat was exported from Gujarat to Kenya and Sri Lanka. The Prime Minister stated that Made in India products are now more visible than ever before in foreign countries.
Mr. Modi stated that the potential of India in this field is great, and farmers, artisans, weavers, engineers, small entrepreneurs, MSME sector are the true strength. He added that it is only due to their hard work that the goal of exporting to the tune of $400 billion has been achieved. The Prime Minister also said that small entrepreneurs are playing a major role in government procurement through Government E-Marketplace GEM. He added that such a transparent system has been developed through technology. During the last 1 year, through the GEM portal, the government has purchased items worth more than 1 lakh crore rupees. Close to 1.25 lakh small entrepreneurs and small shopkeepers from every corner of the country have sold their goods directly to the government. Mr. Modi said there was a time when only big companies could sell goods to the government, but that is changing now. He said even the smallest of shopkeepers can sell one's goods to the government on the GEM portal now. He said New India not only dreams big, but also shows the courage to reach that goal. He said the market of the Ayush industry is also increasing. Mr. Modi said that 6 years ago the market for Ayurveda medicines was around 22,000 crores. But today, the Ayush manufacturing industry is touching around 1,40,000 crore rupees. He added that in the startup world as well, Ayush is becoming a subject of attraction. Mr. Modi said that such startups are a symbol of the young entrepreneurs of India and the new possibilities being created in the country. He requested the startups of the health sector and especially the Ayush startups that they should try to make the content in their portal in all the languages recognized by the United Nations. He expressed confidence that Ayush startups from India with better quality products will reign all over the world. इस इंस्पायरिंग रिपोर्ट के बाद अब हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे आज के पहले श्रोता जितेंद्र को, जो खजुराहो से हमें फोन कर रहे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जी मैम नमस्ते, और धीरेन्द्र सर को भी नमस्ते। मैम 2 क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्या करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो उसके कौन कौन से पहलू हैं जो हमें सीखना चाहिए। थैंक यू। सीधे तौर पे करेंसी या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के जरिए संभव नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी निर्भरता फॉरेन एक्सचेंज के रफ्तार के बदलाव की वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी उस पर निर्भर करता है। या कमोडिटी कंपनी, कमोडिटी में सीधे तौर पे आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी कंपनियों जिनके शेयर बाजार में लिस्टेड है उन कंपनियों में निवेश करने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। इसके अलावा अभी आज के दिन ये 2 कमोडिटी जो कि स्पेसिफिकली बाजार में अभी उपलब्ध हुए हैं निवेशकों के लिए, माफ कीजिएगा मुझे पहले ये ध्यान नहीं आया, आप सिल्वर ईटीएफ या गोल्ड फंड या सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर फंड में निवेश करना आज संभव हो पाया है। तो डायरेक्टली कमोडिटी में इन्वेस्ट करने वाले ये 2 विकल्प आपके पास उपलब्ध है। और बाजार में निवेश करने के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाजार में निवेश करना या कंपनियों में निवेश करना बाजार के जरिए ये एक बात है, और ट्रेड करना, आप रोज कुछ खरीद रहे हैं रोज कुछ बेच रहे हैं, और ट्रेडिंग करना ये एक बिल्कुल ही अलग चीज है। निवेश जरूर कीजिए, ट्रेडिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल है। चलते बाजार में लोग पैसा बनाते हैं, गिरते बाजार में, और जब भी खासकर बाजार के रुख में बदलाव होता है तो लोगों को बड़ा फायदा होता है या नुकसान होता है, और उसका क्या आधार है या उसका फंडामेंटल बेसिस क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसमें बहुत कुछ होता है कि आज के दिन कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों का चुनाव करके उसमें निवेश करना और समय और कुछ इंतजार करना, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो एक अच्छे इक्विटी फंड का चुनाव कीजिए, उसमें आप लगातार पैसा लगाइए। और
इक्विटी में पैसा लगा करके पैसा बनाने का तो एक मुझे केवल सीधा जरिया, आसान जरिया जो कि मुझे लगता है कि आम निवेशकों के पास जो उपलब्ध है कि आप धीरे धीरे पैसा लगाइए, लंबे समय का पैसा ही लगाइए और कुछ सालों के लिए जरूर इंतजार कीजिए। कम समय में बाजार से बहुत ज्यादा फायदा उठाने के नजरिए से निवेश करना आमतौर पे बड़ा खतरनाक साबित होता है। Joining us from Faridabad, we have Rahul with us. Rahul, we welcome you. नमस्कार सर, मेरे एक क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक जगह जॉब करता था, तो उधर से मैंने जब जॉब छोड़ी तो वहाँ जितना भी मेरा पीएफ बनता था मैंने सारा विड्रॉ कर लिया। जॉब छोड़ने के बाद सर, जॉब क्विट करने के बाद, तो क्या मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा? अगर पे करना पड़ेगा तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ और इस इनकम को मुझे कहाँ डिक्लेयर करना होगा? नहीं, एक तो ये पैसा आपको इसके रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में बारीकी से जानकारी नहीं है कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करें। और हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार, जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी किसी भी क्वेरी पर जवाब देंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानना चाहेंगे जहां आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपको बताएंगे, तो आप फायदा उठाइए इस मौके का। हमारे अगले कॉलर है कोलकाता से ध्रुव जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछे। जी नमस्ते। जी अच्छा, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मैं इंडेक्स फंड में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसमें मैंने कुछ फंड चूज किए हुए हैं, तो उनमें से कोई एक फंड बता दें मुझे। जो फंड मैंने चूज किया वो है DFT इक्वल निफ्टी 50, दूसरा HDFC इंडेक्स सेंसेक्स, HDFC इंडेक्स निफ्टी 50, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ICICI क्रू निफ्टी इंडेक्स या फिर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड के जरिए निवेश करने में मुझे लगता है कि आपको खास एक चीज ध्यान देना चाहिए कि वो फंड बड़ा हो, उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, और उस नजरिए से HDFC का फंड काफी अट्रैक्टिव लगता है। बाकी जो बहुत सारे फंड है, ये जो इक्वल वेटेड फंड और ये बहुत सारे नए विकल्प अभी उपलब्ध हुए हैं, उनको अभी थोड़ा समय देना चाहिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्टैब्लिश करने में। SPS Jain is with us now from Greater Noida. Mr. Jain, we welcome you. Please ask your question. नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को और आपकी टीम को नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, अभी मैंने थोड़ा अपना पैसा डाइवर्सिफिकेशन करके SBI इंटरनेशनल एक्सेस US इक्विटी फंड ऑफ फंड में लगाया। तो ये मेरा निर्णय कैसा है, और इसमें टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा खतरनाक है। 3 साल से पहले रिडीम करने में पूरी अर्निंग मेरी टैक्स स्लैब के अंदर आती है। जी हाँ, इंटरनेशनल फंड ट्रीटमेंट बिल्कुल डेट फंड की तरह है। 3 साल से कम समय में जो आपको जो भी फायदा होगा वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाएगा। और ऐसा ही था, हर एक सारे इंटरनेशनल फंड का टैक्स ट्रीटमेंट ऐसा ही है, और ये एक अच्छा विकल्प है। इसका लंबा हिस्ट्री है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, और काफी क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड में ये इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि आपका विकल्प अच्छा है, ये आपका चुनाव अच्छा है। और जब भी आप किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं, तो मुझे लगता है केवल 3 साल का नहीं, 5 साल का नजरिया रखना चाहिए। और उस नजरिए से इस अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको निराशा नहीं है। आप चलते हैं नोएडा, जहां से प्रदीप है हमारे अगले श्रोता जो हमें फोन कर रहे हैं। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा प्रश्न ये है कि SBI का जो फोकस्ड ग्रुप है म्यूचुअल फंड, उसमें लॉन्ग टर्म के बारे में बताएं कि वो लॉन्ग टर्म में यदि इन्वेस्ट किया जाए तो बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहेगा, और यदि SBI में और भी इससे अच्छे यदि म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसके बारे में भी बताएं मैम। थैंक यू। नहीं, SBI का ये फोकस इक्विटी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी और लंबे समय के लिए लगाते हैं, तो बिल्कुल इसमें लगाना चाहिए और नियमित रूप से लगाना चाहिए, उसी नजरिए से लगाना चाहिए। लेकिन किसी भी इक्विटी फंड के बारे में मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप लंबे समय नजरिए से लगाइए, अच्छे फंड का चुनाव कीजिए। और लेकिन आप निवेश करके किसी भी इक्विटी ऑप्शन में, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप निवेश करके उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छे फंड बुरे हो जाते हैं, बुरे फंड अच्छे हो जाते हैं।
तो इनको और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको जल्दी तुरंत हर रोज देखिए, हर महीने देखिए, बल्कि साल 2 साल से जिस वजह से आपने इस फंड का चुनाव किया है वो जो कारण है वो अभी भी बरकरार है, ये जरूर एक बार वेरीफाई कर ले। तो निवेश कीजिए, बने रहिए, और जरूरी नहीं है कि इसमें बदलाव कीजिए, लेकिन 1-2 साल पे 3 साल पे जरूर इसको एक बार देख लें कि ये फंड अभी भी अच्छा है। और वो ये भी जानना चाहते थे कि एसबीआई के ही कोई और अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? जी हाँ, एसबीआई के कई अच्छे इक्विटी फंड हैं, लेकिन अगर ये फोकस इक्विटी फंड पैसा लगा रहे हैं, ये एक अच्छा फंड साबित हुआ है, और इससे अपना निवेश न बदले। अब चलते हैं हावड़ा, जहां से मजीजुल हक है हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी मजीजुल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जो रेडियो सेट है उसकी वॉल्यूम हल्की कर दीजिए। अच्छा, हम हावड़ा से बोल रहा हूँ, शेख मजीजुल हक। जी बताएं। हाँ धीरेन्द्र जी सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कि अभी जो एमएसएमई से आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एमएसएमई सेक्टर में हम लोग माल से सप्लाई करते हैं, उसमें तो पेमेंट बहुत देर में हम लोग को मिलते हैं, और एक जो हम लोग को जो बोला है कि सीजन फ्रूट के लिए रफ्तानी करने के लिए बोला है, तो अभी वो करने से हम लोग का ठीक रहेगा कि? साहब, मुझे इस बारे में ये खबर थी अभी, और हम निवेश के बारे में आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। Atanu Shah from Kolkata joins us now. Atanu, we welcome you. Good evening, sir. Good evening. My respected sir, and my first question is, what is NPS, National Pension Scheme, and what is how it is working, and what is its stipulating time? Thank you. Good evening. Okay, National Pension System is a very elaborate pension system for citizens of this country. It was started it actually became the mandatory pension vehicle for central government employees, all the employees who came on board since 2004. And ever since, so all central government employees, for them the mandatory savings vehicle for their pension is National Pension System. And even for most state government employees, except for West Bengal. And of late, there has been a decision, even Rajasthan was part of it, but a few months back, Rajasthan Assembly has decided to be out of it. So all state government employees now, they are part of a national pension system. Plus, this is also a system, this is also a saving investment scheme, investment vehicle, available as a discretionary pension vehicle for all citizens of the country. So people like me, you, anyone who wants to save money for their retirement, they can invest here. This pension system, actually, National Pension System, is almost like a mutual fund, except that it is far lower, it's much lower expense than a mutual fund. It has all that benefits like that of a mutual fund, and it is a pooled investment with very low expense, and you have all kind of options. You have three plans, and you can mix and match things either in the equity, the debt, and debt of two kinds: the government securities as well as corporate debt. And you can combine these funds in a certain allocation. The maximum allocation in an equity fund for any individual can be 75%. The state government and central government options are much restricted. They are maintaining a far lower equity allocation. So this is actually this is a pension system made available primarily for the government employees and also available to citizens. There is a variation of the national pension system which is called Atal Pension Yojana, which provides a kind of guarantee for the lowest contributor for their contribution in the pension in this pension plan. टी कुमार है चेन्नई से अब हमारे साथ। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। Good evening, Mr. Dhirendra. I have two questions. One is, why this Quant Active Fund is not rated by Value Research, even though it has been in existence since 2013? Number two, for someone who has been investing in mutual for more than 10-15 years, what is your suggestion for investing in UTA Momentum 30 Index Fund with a 10-year perspective? Thank you.
we rate all equity funds which are over 3-year-old, but we disband the rating of those funds which change their objective sometime in between. So if a fund was being managed in a certain way and at a certain point it changed its objective, it decided to manage it in some other way, and that is it's fundamentally different from the way it was being managed before, then the category undergoes a change. And so with this in mind, Quant Active Fund, it has now become a multi-cap fund, and erstwhile it was a different category. And that is why, because of this change in its objective, rating has been disbanded. And once in the new objective, it is able to build a track record of 3 years, it will be rated again. Prakash from Delhi joins us now. Prakash, we welcome you. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। नमस्कार। धीरेन्द्र जी को नमस्कार। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड ऑनलाइन भी हो सकता है, और उसके लिए क्या नेट बैंकिंग जरूरी है? मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो रिस्की है नेट बैंकिंग, इसलिए मैंने पसंद में नहीं है। और दूसरा SBI हाइब्रिड फंड कैसा है, जरा ये बताएंगे मेरे को सर। दूसरा सवाल कि SBI हाइब्रिड है, ये अच्छा हाइब्रिड फंड साबित हो रहा है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। और आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है और आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना संभव तभी है जब आप फंड इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे पाए, और पैसा दे पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस हो। दूसरा भी, अगर आपके पास दूसरा जरिया भी नहीं है, जैसे कि अगर आप गूगल पे या इस तरह के जो बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं, तब भी आपके लिए ये कर पाना संभव है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आपके लिए ऑनलाइन निवेश पूरी तरह कर पाना संभव नहीं है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां से के राय है हमारे। करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना संभव तभी है जब आप फंड इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे पाए, और पैसा दे पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस हो। दूसरा भी, अगर आपके पास दूसरा I think there is कुछ technical issue. Talk back is happening over here. Yeah. During while we set this technicality correct, the up and down in the markets make many investors anxious. So, do you think SIPs help them navigate the markets volatility? Yeah, I think, this is actually a big evidence which is getting demonstrated by the behavior of the individual investor. Despite the big ups and downs of the market, domestic investors have been able to continue their SIP. The amount of money getting invested through SIP is on the rise month after month. In fact, it has grown to such a level that, foreign investors have been consistently pulling out from the market in recent months. Despite that, the domestic investment has been able to more than balance the outflows, and that has added to that actually shows in the greater resilience of our market. So yes, the regular investing by the individual investors has provided far greater stability to the market than ever in the past. इनफैक्ट आपने FPI आउटफ्लोज की बात करी, तो उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महेश जी हैं हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर के बाद आपसे सीधे बात करेंगे। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने इक्विटी बाजारों से 1,10,445 करोड़ रुपए निकाले, और ऋण बाजार में उन्होंने 6,141 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जिसके चलते इस वर्ष भारतीय पूंजी बाजारों से FPI द्वारा निकाली गई कुल शुद्ध राशि 1,16,586 करोड़ रुपए रही। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे महेश जी का। नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। Good evening, I have some 3 questions actually. I have SBI Blue Chip actually. There is no SIP actually, but the amount is exists in the SBI Blue Chip. So can I keep it as it is, or I have to move it to some other for better returns? Second question is, what is the best short-term debt fund?
The third one is that last week SEBI has given some directive to the people to discontinue the funds in the Gulf or something, where some pension funds also are there in a 6 months horizon period. So what is the impact because of the directive? What is the impact on the mutual funds? Sorry, I couldn't get your third question. There's some directive that has come in regarding mutual funds that... Pension funds. No, I'm unable to, relate to what your question. पहले दो सवाल की SBI ब्लू चिप फंड एक बेहतरीन लार्ज कैप फंड है और इसमें अपना निवेश जारी रखना चाहिए और any fund which does not as well as most other funds in the category for a brief period of time, don't get upset. All the good funds are unlikely to be doing very well all the time. There will be patches of not so great performance consistently, but SBI Blue Chip remains a great fund, and you should hold on. When it comes to the short-term debt fund, the funds that we like are quite a few: Axis Short-Term Debt Fund, HDFC Short-Term or IDFC Short-Term, and L&T Short-Term Bond Fund. These are the 4 short-term bond funds which we like for their, and they may not deliver you the highest return, but they are very high on safety. They are very high on reasonable consistency. Sudhir Basu from Kolkata joins us. Sudhir, we welcome you. Sudhir, good evening. Good evening. नमस्कार धीरेन्द्र जी. नमस्कार. धीरेन्द्र जी पूछना था ये हाइब्रिड फंड्स के बारे में. क्वांट का जो हाइब्रिड फंड है एब्सोल्यूट है, तो उसका जो रिटर्न है एक 3 और 5 साल है, तो उसका रिटर्न नॉर्मल इक्विटी फंड के जैसा लग रहा है. तो एक हाइब्रिड फंड के लिए इतना रिटर्न तो सब ठीक है क्या? उसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं? तो इसलिए पूछ रहा था. हाँ, ये फंड फिलहाल ये बहुत सारे लोग इसके बारे में काफी क्यूरियस हो रहे हैं क्योंकि इस फंड का प्रदर्शन काफी खासा बढ़िया है और एब्सोल्यूट क्वांट का एब्सोल्यूट फंड अब पुराना हो गया एक तरह से. अगर आप इसको देखें कि पिछले 3 साल में 2 साल से इसका प्रदर्शन बाकी इक्विटी फंड की तुलना में भी काफी जबरदस्त रहा है. 3 साल का इसका रिटर्न करीब 28% एब्सोल्यूट टर्म्स में है और यहाँ गिरावट कम देखी जा रही है, बढ़त ज्यादा देखी जा रही है. और शुरुआत में मुझे इस फंड के बारे में थोड़ी आशंका हो रही थी, लेकिन अब इसका पोर्टफोलियो देख के ये काफी खासा ये अनजान सा पोर्टफोलियो नहीं लगता है. जाना माना मनी कंपनियों में पैसा इसका लगा हुआ है. इस फंड का एक खास चीज ये हमने जानने की कोशिश की और हमारे रिसर्च में और ये जानकारी हासिल करके ये पता चला कि ये फंड एक क्वांटिटेटिव मॉडल फॉलो करता है और जिसमें बहुत सारे इनपुट्स आते हैं और उसके आधार पे, और शुरू में हम इसके बारे में बड़ा आशंकित थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें हमारा ग्रेजुअली विश्वास बनता जा रहा है और खासकर पोर्टफोलियो को देख करके भी कि किसी अनजाने नाम से ये रिटर्न डिराइव नहीं कर रहा है और इसका मॉडल काम कर रहा है. लेकिन ये एक आम तरीके का फंड नहीं है जहां पे हम देखते हैं कि फंड मैनेजर कुछ कंपनियों को चुनता है, एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है और उसके बाद एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके उस पे पेशेंटली वेट करता है. यहाँ पे भारी बदलाव भी देखा जाता है. उसके बावजूद इस तरह का रिटर्न हम भी बड़े हैरान हैं और ग्रेजुअली हम इम्प्रेस हो रहे हैं. समय समाप्त होने को है. सो धीरेन्द्र जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप आए और आपने हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi asks people to make the local global and enhance demand of Indian products. Takes pride in country achieving $400 billion export target. In FPI, outflows jump past 1 lakh crore rupees in just 3 months of this calendar year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.